Today we'll talk about Article 22 of the Constitution. Safeguards against arbitrary arrest and detention. Article 22 provides protection against arbitrary arrest and detention. This article says, Clause 1, that no person who is arrested, it means first it is available for everyone. It is saying no person. Second thing, who is arrested. Second important thing is arrested. Shall be detained in custody without being informed. The person who is being arrested, he shall not be detained in custody without being informed. It means if he is being arrested and being kept in detention, then he needs to be informed the ground of arrest. So first important thing you need to understand that if any person who has been arrested and he is being detained, then he should know the ground of arrest as soon as possible. Second thing, he will not be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. So first thing, he can consult and defended by a legal practitioner of his choice. This is the important thing. Samrat, explain it again. Samrat, am I audible or not? No. Okay, I think रत्न प्रिया आप एक्सप्लेन करो उसको. सर बेसिकली अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो वो अपने चॉइस के किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकता है अपने को डिफेंड करने के लिए. कंसल्ट भी कर सकता है और डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, दोनों चीज़ें हैं. ठीक है. और पहली चीज़ क्या थी इसमें? सर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता है विदाउट गिविंग हिम और हर इन्फो. गिविंग हिम और हर व्हाट? सर मतलब उसको बिना नॉलेज में डाले अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. मतलब उसको अरेस्ट के ग्राउंड बताने पड़ेंगे. ठीक है. यस. इस चीज़ को आप समझो. चल, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. सेकंड जो इसका क्लॉज है उसको डिस्कस करते हैं. सेकंड क्लॉज कहता है एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड, हु इज़ arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate. Any person who is arrested and detained, he will be produced where? Nearest to nearest magistrate within 24 hours of such arrest, but this 24 hours will exclude the
time necessary for journey time excluded. Obs- from the place of arrest to court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of magistrate. Max to max, he can be detained for 24 hours, and he shall not be kept in the detention beyond 24 hours until and unless magistrate authorize the same. Third, third clause. Nothing in clause 1 and 2 shall apply. So now this is what, this is the exception. To any person for the time being is an enemy alien. If anyone is enemy alien, it will not be applicable for that person. दूसरा, to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. So any law that provide preventive detention. Again, I am repeating, it will not be applicable to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. This is clear or not? अब आगे बताता हूँ कि अगर देखो, अगर कोई एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन कौन होता है? जैसे जिस कंट्री के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, अभी चाइना हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ के सिटीजन्स हैं तो इनके ऊपर जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हमने डिस्कस किया, ग्राउंड बताने का, कंसल्ट करने का, डिफेंड करने का और 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का, ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा, अगर किसी को कोई डिटेंशन, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का नेम बताओ। बताओ आप लोग, कौन सा? सर यूएपीए वाला भी है। हाँ, अनलॉफुल यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव लॉज हैं, और अगर इसमें किसी को डिटेन किया जाता है तो उसके पास पहला और दूसरा जो क्लॉज है उसके वो राइट्स उसके पास अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे थे अब इसका फोर्थ क्लॉज है, उसकी बात करते हैं। फोर्थ क्लॉज कहता है, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months. लॉ मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑथोराइज कर सकता है। कितना? लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्शन है कि एक एडवाइजरी बोर्ड होगा कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर or have been. So remember this thing, either they are or they have been or they are qualified to be applied as judge of a high court. या तो वो हाई कोर्ट के जज हों, या वो हाई कोर्ट के जज रह चुके हों, या they have the eligibility to become, they are qualified to become high court judge. So एक एडवाइजरी बोर्ड होगा, उसमें ऐसे लोग कंसिस्ट होंगे
ठीक है, या तो वो हाई कोर्ट के जज हैं या रह चुके हैं या क्वालिफाइड हैं, और अगर एक बोर्ड रिपोर्ट करता है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 3 months period that there is in its opinion sufficient cause for such detention, अगर बोर्ड ने कह दिया कि सफिशिएंट कॉज है बोर्ड की ओपिनियन में, ठीक है, तब उसके डिटेंशन को 3 महीने से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ है कि इस सब क्लॉज में कुछ भी ऐसा ऑथोराइज नहीं करेगा डिटेंशन को any person beyond the maximum period prescribed by any law made by parliament under subclause B of clause 7। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर such person is detained in accordance with the provision of any law made by parliament under clause A and clause B of subclause A and subclause B of clause 7, तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इतना वो नहीं है, बट आपको ये मैंने बता दिया कि ये बोर्ड का आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और समझो आप, अगला जो 5th है इसका क्लॉज, 5th कहता है व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड, व्हेन एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ providing for preventive detention, then the authority making the order shall, as soon as may be possible, communicate to such persons the ground on which the order has been made, and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order. So this is the 5th position. The 6th one is, एक दूसरे की सब आप ये समझना कि एक्सेप्शन ही है, अगर 5th में कुछ कह रहा है तो 6th में। अब 5th में क्या है कि अगर कोई आदमी को डिटेन किया है, कोई ऑर्डर लॉ के तहत कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो जो अथॉरिटी है उसने बोला, अथॉरिटी ने इस ऑर्डर को निकाला है, तो वो ग्राउंड कम्युनिकेट करेगी जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, और जितना जल्दी हो सकेगा the person will be able to make the representation against the order। 5th में ये हो गया। अब 6th डिस्कस करते हैं। 6th says नथिंग इन क्लॉज 5। क्लॉज 5 जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो अथॉरिटी डिटेंशन लॉ के अंदर डिटेंशन का ऑर्डर ला रही है उसको ग्राउंड कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 6th कहता है नथिंग इन क्लॉज 5 shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose fact which such authority considered to be against the public interest to disclose। अब एक नई दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? पब्लिक इंटरेस्ट। जो दिक्कत किसको है? क्लॉज 5 को प्रॉब्लम आ गए। क्लॉज 5 नए प्रॉब्लम में पड़ गया बिकॉज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीज़ नहीं है तो फिर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि ग्राउंड डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान होगा, फिर ग्राउंड डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे, और हो सकता कि जो ऑर्डर है उसको भी चैलेंज ना कर पाए। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इतना बताओ आप। ठीक है, अब जो लास्ट है इसका वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। 7th कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द क्लास और क्लासेज ऑफ केस इन विच ए पर्सन मे बी डिटेन्ड फॉर ए लॉन्गर देन 3 months, longer than 3 months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of advisory board
in accordance with the provision of clause A of सब clause A of clause 4। अब क्या कहा था वहाँ कि अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि सफिशिएंट कॉज है तो फिर उसका 3 मंथ की बियॉन्ड एक्सटेंशन कर देंगे। अब एक ये नया एक्सेप्शन आ गया यहाँ, तो उसी क्लॉज का एक्सेप्शन आ गया। क्या कहा कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐसे लॉ लेकर आ सकती है और उसमें डिफरेंट क्लास के केसों को डाला जा सकता है जिसमें एक आदमी को 3 महीने से ज़्यादा अरेस्ट करके रखा जा सकता है विदाउट टेकिंग द ओपिनियन ऑफ दैट एडवाइजरी बोर्ड। अब उस एडवाइजरी बोर्ड को भी यहाँ सरपास कर दिया एक चीज़। सेकंड, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention, उसको मैक्सिमम पीरियड के लिए रखा जा सकता है। पार्लियामेंट मैक्सिमम पीरियड पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है। और जो इसका लास्ट क्लॉज है वो कहता है द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन इंक्वायरी अंडर सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4। सब क्लॉज ए क्या कहता है? एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट और उस टाइप के या जो जज रह चुका है या होगा, मतलब इधर ही इज़ अ जज और ही हैज़ बीन अ जज और ही इज़ क्वालिफाइड टू बिकम अ जज, उससे होगा। तो ये प्रोसीजर जो है एडवाइजरी बोर्ड को इसमें दिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में बिगनिंग में पढ़ी थी, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर ऑर्डिनरी लॉ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो मुझसे। कोई डाउट है? ठीक है, चलो। Right of arrested persons under ordinary laws। ये राइट कौन कौन से क्लॉज में, अब आप मुझे बताओ। मैं आपको बता चुका हूँ तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। आप एक्सप्लेन करो। विनीता आप मुझे बताओ। 22AB। हाँ एग्जैक्टली 22AB नहीं, 22(1) एंड 22(2), ठीक है। यहाँ पे 4 राइट दिए गए हैं, ठीक है। कितने राइट्स दिए गए हैं? 21, इन दोनों को मिला के 4 राइट्स। पहला क्या है? प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा राइट है कंसल्ट एंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ए लॉयर of his own choice। Third, right to produced before a magistrate within 24 hours। एक और कौन सा है बताओ?
एक राइट और है, अब आपको बताना पड़ेगा। हाँ सम्राट बताओ आप। Sir, right to be released after 20 after 24 hours, unless there is any other discretion from the magistrate. Yes, exactly. So the next one is freedom from detention beyond the set period except by the order of the magistrate। ठीक है। अब इसको आप याद रखना, द these rights guaranteed to arrested person by clause 1 and clause 2 of article 22 are available to both citizens and non-citizens, and not to persons arrested and detained under any law providing for preventive detention. Remember this thing, these rights are available for citizen and non-citizen except enemy alien. However, if any person is arrested and detained under any law that is providing for preventive detention, then these rights cannot be availed by that particular person. So I'm going to discuss one by one all these four. Right to be informed, right to be informed of ground of arrest. This is, I'm going to tell you reasons why we have this provision. This is necessary to enable the arrested person to know the grounds of his arrest and to prepare for his defense. अब मान लो आपको कोई कहीं ले गया है, तो आप पूछते नहीं हो कि मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप, या कोई भी अरेस्ट होता है तो वो आदमी पूछता है ना मैंने क्या किया है, क्या किया है, बोलता है कि नहीं बोलता है, बताओ आप मुझे। अब अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो अपने आप को डिफेंड क्या करेगा। तो सबसे पहली बात है कि द पर्सन कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हिज डिफेंस। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 इज इन नेचर ऑफ डायरेक्टिव टू द अरेस्टिंग अथॉरिटीज टू डिस्क्लोज द ग्राउंड of arrest of a person immediately. The words used in Article 22 Clause 1 are as soon as may be, which means as nearly as is reasonable in the circumstances of a particular case. And if the ground of arrest is delayed, it must be justified by reasonable circumstances. The right of being informed of the ground of arrest is not dispensed विद बाई ऑफरिंग टू मेक बेल टू दी अरेस्टेड पर्सन। समझ में आ गया कि नहीं, कि ऐसा नहीं है कि भाई उस आदमी को बेल दे दी या बेल ऑफर कर दी तो उसको अरेस्ट की ग्राउंड नहीं बताओगे, एक ग्राउंड बताना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक चीज़ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लो, मैं 1 मिनट में वापस से स्टार्ट करता हूँ।
इतना क्लियर है आपको? चलो अब दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ. This we are going to discuss. Right to be defended by a lawyer of his own choice. So आप अमेरिका की बात करते हैं थोड़ा सा. In America, if a person is arrested, he must be afforded opportunity to consult lawyer of his own choice. And if he is unable to employ a counsel means lawyer, it is the duty of the court to employ a lawyer. किसकी ड्यूटी है? कोर्ट की ड्यूटी है. एम्प्लॉय a lawyer for him. Prior to the Maneka Gandhi's decision in India, the view of the court was that it was not bound to provide the help of a lawyer unless a request was made. But after the Maneka Gandhi case, and there were a series of cases following Maneka Gandhi case, it is clear that the court will be bound. Listen carefully. The court will be bound to provide the assistance of a lawyer to a person arrested under an ordinary law also. ठीक है. अब आपको एक केस का नाम सुना दूं. मोहम्मद आमिर कसाब अलियास अबू मुजाहिद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इसमें आपको पता है कि नहीं इस केस के बारे में आपको? So 2611. Exactly. So the accused Ajmal Amir Kasab alias Abu Mujahid, he was a Pakistani national and he was offered lawyer at the time of his arrest, but what he did, he denied. Thereafter he assertively denied the service of Indian lawyer and made the requests for the lawyer of his home country. That means that he wanted to be representative and defended by a Pakistani lawyer. When he was convinced that no aid would be given by his home country, the demand for lawyer was made by him, which was immediately provided to him. So the accused could not be said to have been denied any of his constitutional right. Now you listen. Even though these constitution specifically mention that for enemy alien, these things are not possible. But can you see that we have provided counselor access to a Pakistani national also? Can you see this? Can you understand the kind of provision we have? I mean, the kind of liberal provision we have. Okay. नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्या है इसमें अपना? नेक्स्ट है द राइट अवेलेबल टू द एक्यूज्ड एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट. ठीक है. इसमें क्या है? द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर एंड द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन would not remain incomplete and unsatisfied if those rights are not read out to the accused. तो आप इस चीज़ को समझो कि पढ़ के बोलना पड़ता है. और अगर आप कोई कंप्लेंट देखोगे, कोई FIR, तो जनरली उसमें क्या लिखा होता है कि इनको पढ़ के और सुनाया गया, इन्हीं की लैंग्वेज में, जो ये लैंग्वेज बोलते हैं उसमें पढ़ के इन्हें सुनाया गया. इसके बाद एक्यूज ने उसके ऊपर साइन किए. एंड एनी फेलियर टू प्रोवाइड लीगल एड टू द एक्यूज एट द बिगनिंग और बिफोर हिज कन्फेशन इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC
वुड नॉट रेंडर द ट्रायल इलीगल। तो ये चीज़ है, इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ थी नो डिटेंशन। आप ये चीज़ समझ रहे हो कि जो मैं सेकंड में मैंने बताया कि उसको पढ़ के बताना पड़ेगा, जो कंप्लेंट उसके अगेंस्ट है उसको भी पूरा पढ़ के उसको बोलना पड़ेगा, ये पुलिस की ड्यूटी है। नेक्स्ट है नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। अब इसमें क्या है, इसको बता देता हूँ। अगर सर हाँ, सर थर्ड प्रोविजन में ट्रैवलिंग टाइम भी इंक्लूडेड है ना? नहीं, ट्रैवलिंग टाइम इंक्लूडेड नहीं है, ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूडेड है। वो तो पहले ही डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, नहीं बताया था मैंने कि सर आपको। मैंने लेट लेट ज्वाइन किया। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि जहाँ उसका अरेस्ट हुआ है और जहाँ से मजिस्ट्रेट के पास तक नियरेस्ट जो मजिस्ट्रेट है उसके बीच की जो दूरी है वो एक्सक्लूडेड रहेगी। ओके, गॉट इट। अब अगला डिस्कस कर लेते हैं। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सेप्ट बाय ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। So if there is a necessity of detention beyond 24 hours, it is only possible under judicial custody. अब आप अंतर समझना शुरू करो, डिफरेंस। इट इज ओनली पॉसिबल अंडर जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी मतलब क्या होता है? बाय द ऑर्डर ऑफ whom? टेल मी। कोर्ट। By the order of court, by the order of magistrate, by the order of judicial magistrate. Getting my point? Then only you can keep that person. And if the person is beyond 24 in the custody beyond 24 hours, then first thing it has to be authorized by the judiciary, and if it has been authorized by the judiciary, then it will be called judicial custody. समझ में आया आपको कि जुडिशियल कस्टडी क्या होती है? अब एक चीज़ समझो, जो एक एक्सप्रेशन है अरेस्ट एंड डिटेंशन इन आर्टिकल 22 क्लॉज 1 and 2, it was not held to apply to a person who is arrested under a warrant issued by the court on a criminal or quasi criminal complaint or under security proceeding। इस चीज़ को आप याद रखना कि अगर कोर्ट ने वारंट इशू किया है और वो अरेस्ट या डिटेन हुआ है, तो फिर जो 22 में जो अरेस्ट एंड डिटेंशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। उसमें तो जैसे जाके पुलिस उठा लेती है, यहाँ क्या हो रहा है, कोर्ट ने वारंट दिए हैं। आर्टिकल 22 इज डिजाइन टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव और ऑर्डर ऑफ नॉन जुडिशियल अथॉरिटीज, एंड इट अप्लाइज टू ए पर्सन हु हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम ऑफ ऑफेंस of criminal or quasi-criminal in nature or some act that is prejudicial to the state or public interest। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि आदमी को 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास भेजना है, ठीक है। इससे क्या होगा, दिस वुड इनेबल द अरेस्टेड पर्सन टू get a speedy trial, and if there is a failure, आप भी मुझसे पूछ सकते थे कि अगर 24 घंटे में नहीं किया तो क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। if there is a failure to arrest if there is a failure to produce the arrested person before the nearest magistrate within 24 hours, it would make the arrest illegal. Are you getting my point or not? Yes, sir. And this is also available to a person arrested under a warrant issued by a speaker of legislative assembly for committing contempt of the house। तो इस चीज़ में याद रखना, आप याद रखना कि
जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो वारंट इशू कर सकता है अरेस्ट के लिए। अगर आपने कंटेम्प्ट किया है। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अब इन दो Sir, contempt of what? कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने नहीं पढ़ा कि पार्लियामेंट का कोई कंटेम्प्ट करता है या उसका तो स्पीकर के पास पावर है उसको पनिश करने की। चलो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। पार्लियामेंट का कंटेम्प्ट हो गया या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंटेम्प्ट हो गया, अगर आप वो करते हो तो यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट आल्सो। अब इन दोनों का एक्सेप्शन था, उसको एक बार और देख लेते हैं। एक्सेप्शन है क्लॉज 3, दो एक्सेप्शन देता है। दो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? पहला है कि जो क्लॉज 1 एंड 2 आर नॉट अवेलेबल टू एनी पर्सन हु इज एन एनिमी एलियन, ठीक है। दूसरा क्या है? ए पर्सन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अंडर ए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब अगर कोई किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट किया गया है तो फिर उसके लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। बट एन एनिमी एलियन हाउएवर सीक द प्रोटेक्शन अंडर क्लॉज 4 and 5 of Article 22 if arrested under a law of preventive detention, but he is subject to the law passed by the parliament। अब 7th क्लॉज जो 22(7) है उसमें पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि पार्लियामेंट हर चीज़ को सरपास कर सकता है, एटलीस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में। अब हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। क्लॉज 4 टू क्लॉज 7। सबसे पहली बात, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है। क्वेश्चन आ जाए वेदर इट्स डिफाइंड और नॉट, तो क्या बोलोगे आप लोग, डिफाइंड है या नहीं? बताओ मुझे। इट्स नॉट डिफाइंड, सो देर इज नो authoritative definition of the term preventive detention, even though in Indian law also the preventive is used in contradistinction to the word punitive. So it is not, when I'm saying preventive, it is not a punitive but a preventive measure. You are preventing something। अगर आपको कोई लगता है, जैसे मान लो आपको लगता है कि ये आदमी जाके किसी को चांटा मार सकता है, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो? आप उसको घर से जाने नहीं दोगे, आप कहोगे नहीं। अगर कहीं मान लो कुछ बातचीत हो गई तो आप क्या कहोगे कि नहीं तुम रुको, ठीक है। तो आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो जाने से, समझ रहे हो ना? आप चाहते हो कि वो चीज़ अवॉइड हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एनीथिंग कैन हैपन, देन यू कैन रिस्ट्रेन दैट पर्सन फॉर अ टाइम बीइंग। जब तक आपको लगता है कि एक कूलिंग पीरियड नहीं आ जाता तब तक आप उसको डिटेन करके रख सकते हो, या जब तक सिचुएशन नॉर्मल ना हो जाए। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको कि ये प्यूनिटिव नहीं है बट प्रिवेंटिव है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? इज टू पनिश ए पर्सन फॉर वॉट ही हैज़ ऑलरेडी डन, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट टू पनिश
a person for having done something, but to intercept him before he does it and to prevent him from doing it. No offense is proved nor any charge is formulated, and the sole justification of such detention is suspicion or reasonable probability of detenue committing some act likely to cause harm to the society or endanger the security of the government, and not criminal conviction which can only be warranted by legal evidence. तो इस चीज़ में को आप अंतर समझना, प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि नहीं आई, आप ही बताओ। हमारे पास बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो था, इट वाज enacted in 1950 on 26th February, and the objective was to provide for detention with a view to preventing any person from acting in a manner prejudicial to the defense of India, the relation of India with foreign powers, the security of India, or a state, or the maintenance of public order, the maintenance of supplies and services is essential to the community. So all these things were there. फिर एक चीज़ और बता देता हूँ, दिस एक्ट वाज प्योरली अ टेम्परेरी मेजर, एंड 1 अप्रैल 1951 के बाद इसको इट हैज़ टू बी सीज। बट फिर क्या हुआ, इसकी लाइफ को टाइम टू टाइम जो है एक्सटेंड करा दिया, एंड फाइनली ये लैप्स हुआ 31 दिसंबर 1969 को जाके। फिर इसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971, इसको हम लोग मीसा बोलते हैं। और ये इसके बाद मीसा को रिपील कर लिया गया 78 में। इसके बाद एक आया प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इसके बाद फिर आपके पास एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, जो लोग बोलते हैं NSA लगा दिया है, आपको याद ये चीज़ आपने सुनी है कभी, NSA लगा दिया? So it came in Yes, sir. 1982, and in 1980 the president issued the National Security Ordinance Letter. पहले ऑर्डिनेंस आया था, इसके बाद रिप्लेस कर दिया। और ये क्यों आया था NSA, आपको पता है? तो सर पंजाब इंसर्जेंसी के लिए। हाँ एग्जैक्टली, उस टाइम पे जो है पंजाब में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो NSA लेके आए और प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से आया। इसमें क्या था कि प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनल एंड कास्ट राइट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ प्रीजुडिशियल टू दी कंट्रीज सिक्योरिटी। इसके बाद आपको बताऊं कि इस AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें NSA को चैलेंज किया गया, और इस NSA को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना 4-1 की मेजॉरिटी से, और ऑर्डिनेंस जो था उसको तो माना ही माना है। इसके बाद कोर्ट ने कुछ चीज़ें बोली इसमें, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है आपको जानने के लिए। केस का नेम भी याद रख सकते हो आप, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड NSA से रिलेटेड केस जो है AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। आवाज़ आ रही है आपको? तो इसमें क्या बोला, दैट इमीडिएटली आफ्टर डिटेंशन हिज, क्या बोल कोर्ट ने क्या कहा, उसके डिटेंशन के बाद हिज किथ एंड किन, हिज किथ एंड किन must be informed in writing about his detention and his place of detention. क्या क्या? पहली चीज़ राइटिंग, दूसरी चीज़ प्लेस ऑफ डिटेंशन, और क्या था, क्या बोला था मैंने आपको? दूसरा
एक उसकी डिटेंशन के बारे में और एक उसकी प्लेस ऑफ डिटेंशन के बारे में उसके जो है सगे संबंधियों को बताना है। एक चीज़। दूसरा कोर्ट ने कहा द डिटेन्यू मस्ट बी डिटेन्ड इन अ प्लेस वेयर ही हैबिचुअली रिसाइड अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज रिक्वायर डिटेंशन इन सम अदर प्लेस। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ क्या है? द डिटेन्यू इज़ एंटाइटल्ड टू हिज बुक एंड राइटिंग मटेरियल, हिज ओन फूड, विजिट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। नेक्स्ट है ही मस्ट बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दोज कन्विक्टेड। जो लोग कन्विक्ट हुए हैं उनसे उनको दूर रखना है। नेक्स्ट वन है नो ट्रीटमेंट ऑफ अ प्यूनिटिव कैरेक्टर शुड बी meted out to him and he should be treated according to the civilized norm of human dignity। तो ये बहुत सारी चीज़ें कोर्ट ने बोली हैं, लेकिन आपको पता है कोई ये सब बहुत प्रैक्टिस में तो मुश्किल ही है ये सब चीज़ें होना। फ्रेंड्स तो मिलना दूर की बात हो गई। इतना आपको क्लियर है कि नहीं है? बस मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे हमारा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बता देता हूँ क्या है। सो दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिकॉग्नाइज द नेसेसिटीज ऑफ लॉ एज टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड safeguards to mitigate their harshness by placing some restriction on legislative power. So it is for this person, it is for this reason that Article 22 has given a place in the chapter of fundamental right and it has been made a guaranteed right। एब्सोल्यूट तो कुछ होता नहीं है, आपको सब पता ही है, ठीक है, बट जो मैंने आपको बताया बस आपको उतना जानने की ज़रूरत है। सो इसमें क्या है कि क्लॉज 4 to 7 गारंटीज द फॉलोइंग सेफगार्ड्स टू ए पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो जो क्लॉज 4 to 7 है उसको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। पहला वाला क्या था? रिव्यू बाई एडवाइजरी बोर्ड, यही था ना। सेकंड वन कम्युनिकेशन ऑफ ग्रांट, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन टू detain you। नेक्स्ट detainees राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये सब दिए गए हैं। तो इसको बाकी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, ये वाला इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने को, रिव्यू बाय एडवाइजरी बोर्ड। अब एक चीज़ समझो आप, 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद से कुछ चेंजेस आए हैं। प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट क्लॉज 4 provided that no law providing for preventive detention shall authorize the detention of a person for a longer period than 3 months। मैं 44th अमेंडमेंट के आने से पहले की बात कर रहा हूँ। Unless an advisory board constituted of a person who were or had been or qualified to be high court judge had reported, and remember this thing that before the expiry he has to report। Of the said period of 3 months that there was in its opinion sufficient cause for such detention। ठीक है, if in the opinion of advisory board the detention was not justified, the government was bound to revoke the detention order। Remember this thing। And if the advisory board reported that the detention was justified, then detaining authority would determine the period of detention। 3 महीने के बाद डिटेनिंग अथॉरिटी बताती कि कितना और डिटेन करके रखना है। बट ऐसा था कि ये पीरियड इंडेफिनिट नहीं हो सकता था। द डिटेंशन पीरियड कुड नॉट एक्सीड इन एनी केस बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाई एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट फॉर दैट क्लास ऑफ डिटेन्यू
अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था. And any law providing for detention for a longer period of 3 months without obtaining the opinion of advisory board must provide the class or classes of case and also the circumstances under which a person could be detained for more than 3 months. ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताओ आप मुझे. अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये पोजीशन अभी भी यही है. जो पोजीशन है ये 3 मंथ्स और ये सब कुछ है, बट जो मैंने अभी बताया वही एग्जिस्टिंग पोजीशन है. बट एक अमेंडमेंट आया 44th जो कभी इन्फोर्स नहीं हो पाया. सो आपको बताता हूँ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक प्रोविज़न आया और इसने एक न्यू क्लॉज को सब्स्टिट्यूट किया जिसने क्या किया, इट हैज़ रिड्यूस द मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन फ्रॉम 3 मंथ्स टू 2 मंथ्स, 3 महीने से 2 महीने कर दिया, without obtaining the opinion of the advisory board, and the detention of person for a longer period than 2 months can only be made after obtaining the opinion of advisory board. So the amendment also changed the composition of the advisory board. क्या क्या हुआ? The advisory board shall constitute in accordance with the recommendation of Chief Justice of appropriate High Court. So इसका मतलब समझ लो कि अगर MP में कुछ हो रहा है तो MP का जो चीफ जस्टिस है वो रिकमेंडेशन करेगा, ठीक है. और इसमें एक चेयरमैन होगा और कम से कम 2 मेंबर होंगे, नॉट लेस देन 2 मेंबर. चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स, इतना 3 का कंपोजिशन होना चाहिए. और जो चेयरमैन होगा एडवाइजरी बोर्ड का, ही शैल बी अ सिटिंग जज ऑफ दैट appropriate high court, and the other members will be sitting or retired judge of any high court. इतना है. जो अमेंडमेंट था, इट abolished the provision for preventive detention without reference to an advisory board as provided in unamended subclause A of clause 7 of article 22. This amendment deleted clause A of subclause A of clause 7 of article 22. So under 22 clause 7 clause A पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ. फिर से रिपीट करता हूँ. पार्लियामेंट वाज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग the opinion of an advisory board beyond the period of 3 months. But after 44th amendment, a person can be detained beyond that period of 2 months only after the obtaining the opinion of advisory board. So the deletion of clause A of article 22 subclause A of article 22 clause 7 was removed, the greatest blot on preventive detention in India. So this thing you need to remember. अब इसके बाद क्या था कि अमेंडमेंट ने 2 कैटेगरीज में प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड किया. एक मैक्सिमम 2 मंथ अंडर ए लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर, दूसरा 2 मंथ की बियॉन्ड जब एडवाइजरी बोर्ड अपनी ओपिनियन दे इसके फेवर में. अगर एडवाइजरी बोर्ड कह दे कि जस्टिफाइड नहीं है तो फिर इसको रिलीज कर दिया जाएगा. बट इस चीज़ को याद रखना कि जो 44th अमेंडमेंट था हैज़ नॉट yet been enforced. It has not been enforced. Therefore, the provisions prior to 44th Amendment Act still apply. And the advisory board is bound to submit its report before the expiration of the said period. And failure to do so would render the detention illegal. ठीक है, तो आपको बता दिया. बट ये भी चीज़ है कि द डिटेंशन फॉर मोर देन 1 ईयर वुड बी इलीगल. कोर्ट ने कहा था 1 साल से ज़्यादा का डिटेंशन नहीं होगा, तो मैक्स टू मैक्स 1 साल तक रख सकते हैं. बस इसमें यही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. और आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ लो. कुछ पूछना है आपको?
सर ये जो 1 year मैक्सिमम डिटेंशन है, दिस इज अंडर एनएसए एक्ट नो? डिफरेंट डिफरेंट लॉज में है वो, एनएससी के बहुत सारे, हमारे पास तो यूएपीए है, वो है। तो कोर्ट ने कहा 1 साल का जाना का नहीं, बट रख तो सकते ही है वो डिटेंशन में अपना जस्टिफाई कर करके, बट उनको जस्टिफिकेशन देने होते हैं। जनरली ये पोजीशन है, बट अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे आपको मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ कंट्री या ये सब चीज़ें अगर एग्जिस्ट करती हैं